Hello students, myself Swati. This is your online maths class. Welcome back all of you. Yes, we were doing in the last video we have done or we have actually started exercise 14.3 and we were finding the mean. I told you what questions you have to attempt in the exercise. Now second 14.3 question number second was a little bit different, so I told you leave it. Today we will do that question. Okay, so you can see that what it is. First of all, draw the table. Okay, class interval. Okay students, what it is saying, median of the data is already given to you and median is how much? Median is 28.5 and that is already given to you. Okay. So whenever whatever is the value of median, that will lie only in the median class. Okay. So can you see that 28.5 is lying in between of which of the class interval? आप देख सकते हो 28.5 कहाँ किसी क्लास इंटरवल में आएगा इसमें, तो ये वाला क्लास आपका क्या है? दिस इज योर मीडियन क्लास. आई थिंक यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ एल फ्रॉम हियर. ओके, यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ एफ फ्रॉम हियर. नाउ वी विल फाइंड द सी एफ. ओके, फर्स्ट नंबर एज इट इज. ओके, इन फर्स्ट यू विल ऐड एक्स, देन इट विल बी, देन ऐड 20, ऐड 15, add y, and in the last will be x plus y. Okay, so you can check that the sum is already given to you, and that is how much? 60. And if you will add all of them, what you will get? You will get 45 plus x plus y. So first equation आपको यहाँ से मिल रही है, आप x और y की वैल्यू निकालो यहाँ से. x plus y will be 60 minus 45. 60 minus 45 is how much? 50. So what is the value of x plus y? X plus y is 50. This is your equation number first. Okay. Now we as we know that what is the median, value of median, what we will do, we will put it in the formula. Okay. So median is equal to, what is the formula? L plus n upon 2 minus CF upon F into H. Okay. So my first work is to find L. What is the value of L? L is, I think you already have found median class. L is your 20. Okay. N upon 2. So what is the total sum of the frequency? The total sum of the frequency is already 60. So n upon 2 will be 60 upon 2. And that will be 30. Okay. Now F. What is F? Frequency of median class. So I think this is like this. Now what is the frequency? Frequency is 20. So what is the value of F? F is 20. Okay. Now CF. So I think you know what is CF. CF is the frequency of class preceding the median class. So cumulative frequency of the class. Cumulative frequency of previous class is how much? 5 plus x. So what is this? Now what is height of the class? Height of each of the class is 10. So what is the height? 10. Now put in the formula of the median. Okay. So median is, I'm doing over here. Okay. Median is equal to, sorry, already median you know what is the value of median? 28.5. So I am putting the value over here. 28.5 is equal to L. L is how much? 20 plus n upon 2 is how much? N upon 2 is 30 minus CF. What is the value of CF? So 5 plus x I am putting within the bracket. Why? Because there are two numbers. Okay. Upon F. F is how much?
20. And what is the value of h? Value of h is 10. 10 1 ja 10, 10 2 ja 20. So what it is coming? 28.5. Now can you see that this is of plus? This side it will go in minus. So 20. or if you don't want you can solve first this one. जैसी आपकी मर्जी है, मुझे ये इजी लग रहा है, मैं इसको इधर लेके जा रही हूँ तो मुझे ये इजी लग रहा है, ठीक है। 20 प्लस का था, इधर आके क्या हो गया माइनस का, ओके। सॉल्व दिस वन, 30 माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन 2, ओके। नाउ 28.5 माइनस 20 that is how much 8.5, okay। 30 minus 5 25 minus x divided by 2, okay। अब ये 2 डिवाइड में है, इधर जाके कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में। 8.5 into 2 is equal to 25 minus x. 8.5 into 2 17. 17 is equal to 25 minus x. अब आप क्या करो, माइनस के x को इधर ले जाओ, माइनस का x इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का x, और ये 17 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 17. 25 minus 17 and that will be your what 8. That is your value of x. Now I think you have got the value of x. Can you find the value of y? How? By putting the value of x in equation number 1. Value of find the value of y. आप x 8 रखो, y क्या आएगा ऑटोमेटिकली 7 आ जाएगा. So from here you can get the value of y also. Okay, so you can see students that how I have find the median how I have find the value of x and y over here if we know the value of median. Okay, now I told you to leave question number 3rd, I think, as well as 4th. Okay, so 3rd question you can see that it is actually the table is not properly made. In the table it is below, like this questions are, you can see the table first of all. Question number 3rd. Okay. Yes, question number 3rd, you can check it out, what it is saying. Question number 3rd, a life insurance agent found the following data for the distribution of ages of 100 policy holders. Calculate the median age if policies are given only to the persons having age 18 years onward but less than 60 years. Okay, so you can see the table first of all. What it is saying in the table, below 20, below 25, below 30, आपको क्वेश्चन में आप देखो, आपको करना क्या है, आपको इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मीडियन निकालने के लिए आपके पास मीडियन क्लास होना चाहिए। लेकिन आपके पास यहाँ टेबल में क्लास तो है ही, क्लास की तो कोई बात ही नहीं हो रही क्योंकि क्लास इंटरवल गिवन नहीं है। तो बेसिक हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास क्लास इंटरवल वाली टेबल नहीं है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट दिस टेबल इनटू द क्लास इंटरवल टेबल। तो हम करेंगे कैसे कन्वर्ट, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्लास साइज डिसाइड करनी पड़ेगी, इसकी क्लास साइज क्या होगी। तो क्लास साइज आपका किस पर डिपेंड करेगा, आप देख सकते हो कितने कितने के गैप पे है, 5 के गैप पे है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ बिलो 20 मतलब क्या हुआ, 1 to 20 हुआ या 18 to 20 हुआ। क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि एजेस शुड नॉट बी लेस देन 18, मीन्स ये जो बिलो 20 वाले पीपल हैं, पर्सन हैं, इनकी एज कितनी होगी, 18 से प्लस होगी, यानी 18 और 20 के बीच में होगी।
अब मुझे आप बताओ कि 20 से पहले मैं ऐसा कौन सा नंबर लूं कि मेरा क्लास इंटरवल गैप 5 आए। 20 से पहले क्या आएगा 15, यस। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे क्लास इंटरवल 15 से 20, क्यों? क्योंकि आपको बिलो 20 किस में आएगा, 15 से 20 में आएगा। 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 एंड 55 to 60। अब आप यहां देख सकते हो कि 60 से कम किस में आएगा, 55 to 60 में। क्वेश्चन यहाँ ये राइज होता है कि क्या इनकी फ्रीक्वेंसीज वही होगी जो यहाँ पे दे रखी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते हो बिलो 20, बिलो 20 का क्या मतलब है, 20 से कम। तो 20 से कम यानी कि 15 और 20 के बीच में आएंगे, यानी यहाँ की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2, ठीक है। बिलो 25, बिलो 25 में बताओ मुझे क्या हुआ, बिलो 25 में कितने लोग हैं, बिलो 25 में आपके हैं 6। अब मुझे बताओ बिलो 25 की कैटेगरी कौन सी है, बिलो 25 की कैटेगरी है आपकी 15 से 20 वाली और प्लस 20 से 25 वाली कैटेगरी। इन दोनों कैटेगरी में जो नंबर ऑफ पीपल है उनका सम कितना है, 6। इसमें कितने लोग हैं, इसमें 2 है, और इसमें कितने हैं, मान के चलो x है, तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, 6 - 2 यानी कि 4। यानी 20 से 25 के बीच में कितने नंबर्स आए आपके पास, 4 कैसे आया, आप इसका दिमाग लगाना है आपको। आप एक्चुअली प्रीवियस माइनस कर रहे हो। देखो अब 30 वाला करके दिखाती हूँ मैं आपको एक और, ठीक है। जैसे बिलो 30, बिलो 30 कितने हैं, 24 है। पर बिलो 30 का मतलब क्या है, बिलो 30 का मतलब है 15 से 20 वाले, भाई जितनी 15 से 20 एज वाले लोग होंगे वो, प्लस 20 से 25 एज वाले जो लोग होंगे वो, प्लस 25 से लेकर के 30 वाले एज वाले जो लोग होंगे वो, और इन तीनों का सम कितना है, 24। इसकी वैल्यू आपको पता है 2, इसकी वैल्यू भी आपको पता है 4, इसकी वैल्यू मान लो भाई, तो कितनी आ गई 24। ओके, 6 + y = 24। सो वैल्यू ऑफ y इज हाउ मच, 24 - 6 एंड दैट इज 18। तो आपको y क्या माना था आपने, y माना था आपने 25 से 30 वाले एज के बीच में, यानी कि ये कितनी वैल्यू आ गई आपकी, 18। तो एक्चुअली आप काम क्या कर रहे हो, तो मैंने आपको बताया है मेथड, बट आप कर क्या रहे हो, आप कर रहे हो इनको प्रीवियस वाले से माइनस। देखो 6 में से 2 गया 4, 24 में से 6 गया 18, 45 में से 24 गया, ओके। तो बताओ क्या आएगा, 21। अब इस 45 में 78 माइनस करो, ओके। तो 3 और 3 33, ओके। 89 - 78 1 और 1 11, ओके। 92 - 89 3, 98 - 92 6 एंड लास्ट वन इज 2। तो ये आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी। अब इस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपको क्या निकालना है, CF, और फिर वही सेम फॉर्मूला जैसा हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था, सेम तरीके से आपको इसका क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। देखो बच्चों, अगर आपको बिलो और अबव का आता है तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको उसको किस में चेंज करना है, क्लास इंटरवल वाले टेबल में चेंज करना है, नहीं तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ठीक है। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या प्रॉब्लम है, एक बार देख के बताओ। यस, यू कैन सी इट कि आपको क्लास इंटरवल्स जो दे रखे हैं वो कंटिन्यूअस नहीं है। देखो आपने 9th क्लास में भी किया हुआ है स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर में कि जब क्लास इंटरवल इक्वल नहीं होता तो हम क्या करते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो क्लास इंटरवल यहाँ पे कितना दे रखा है आपको, 118 to 126, 127 to 135, 136 to 144, okay. This is your class interval and frequency corresponding is 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, ओके। अब आप देख सकते हो कि
आपके पास जो फ्रीक्वेंसीज क्लास इंटरवल्स हैं वो कंटिन्यूस नहीं है। क्यों कंटिन्यूस नहीं है? क्योंकि 126 के बाद क्या आ रहा है आपका 127 आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए, या तो 126 आना चाहिए या कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जो दोनों में कॉमन हो। ये आपने प्रीवियस क्लास में भी किया हुआ, 9th क्लास में। जब डेटा कंटिन्यूस नहीं होता है तो हम उसको कंटिन्यूस कैसे बनाते हैं? तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाली क्लास का अपर लिमिट, पहले वाली क्लास का अपर लिमिट कितना है 126, और सेकेंड वाली क्लास का लोअर लिमिट कितना है 127, दोनों को माइनस करते हैं। ये आपको करना, ये सब काम आपको रफ में करना है, ठीक है, आपको शो नहीं करना है। 127 माइनस 126 इज हाउ मच 1। अब इस 1 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। किसमें डिवाइड करेंगे? डिवाइड बाई 2। सो व्हाट यू आर गेटिंग 0.5, ठीक है। अब आप देखो, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। लोअर लिमिट में माइनस करना है 0.5 और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है। मतलब अपर को और अप करना है, लोअर को और लो करना है, ठीक है। तो 0.5 आप सारे लोअर लिमिट्स में माइनस कर दो, ठीक है। 118 माइनस 0.5 क्या आएगा आपके पास 117.5। मैं इसके सामने कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए इजी रहे। 117.5, ओके, माइनस 0.5 126.5 minus 0.5 again, that will be your 135.5. Here also 144.5, 153.5, 162.5, 171.5 और अपर लिमिट में क्या करना है, प्लस करना है 0.5। तो देखो अब प्लस करो 126.5, 135.5, 144.5, 153.5, 162.5, 171.5 एंड 180.5, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि डेटा आपका क्या बन चुका है, कंटिन्यूअस बन चुका है। आपकी हर क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस है और सब में इक्वल गैप है, ये भी आप चेक कर सकते हो। एक चीज है बेटा, जब आप इनमें प्लस माइनस 0.5 करते हो तो फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, नो चेंज। क्यों फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता? क्योंकि आप देख सकते हो जब आप 117.5 की बात कर रहे हो तो 117.5 टू 118 के बीच में आपका कोई भी डेटा लाई नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब है, जब डेटा लाई नहीं कर रहा है तो वो वैल्यू फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट नहीं करेगी। सिमिलरली यू कैन सी 120, लाइक अगर मैं बात करूं 135.5 की, ठीक है, तो 135.5 में आपका जो ये 0.5 बढ़ा है इसके अंदर कोई भी फ्रीक्वेंसी लाई नहीं कर रही है। जब लाई नहीं कर रही तो इट विल नॉट अफेक्ट फ्रीक्वेंसी एट ऑल। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। अब आपका ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा हो गया। आपको सिर्फ क्या करना है, इसको सिंपली मीडियन का फॉर्मूला लगा के CF निकाल के आपको फाइंड करना है। ये आपका पार्ट है, ये आप करोगे, मैं हार्ड पार्ट आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। 14.3 ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड। वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।